हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स, वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन। तो फर्स्ट एग्जांपल में देयर इज टूर्नामेंट फंड रुपीज़ 2 लाख। तो टूर्नामेंट फंड हमारा स्पेसिफिक फंड होता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। तो इस फंड से रिलेटेड हमें एक्सपेंसेस गिवन है रुपीज़ 60,000, हमें रिसीट्स गिवन है रुपीज़ 80,000, tournament fund investment is given as rupees 2 lakh and 10% interest on tournament fund is given as rupees 20,000 and we know that कि जो funds होते हैं that will be shown in balance sheet। तो tournament fund जो है ये specific fund है, हम जो भी calculations करेंगे will be showing in the liability side of the balance sheet। और जो इसका investment है for this fund, that is tournament fund investment, that will be an asset in the balance sheet। तो tournament fund investment को तो हम asset side पे show करेंगे और tournament fund में हम receipts and incomes related with this specific fund को add करेंगे and we will be subtracting the expenses related with this fund। तो बेसिकली जो भी एक्सपेंस इस फंड से रिलेटेड है दैट वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग एंड वी विल बी एडिंग द रिसीट्स एंड इनकम्स ऑफ द स्पेसिफिक फंड। तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड इज गिवन एज रुपीज 2 लाख। नाउ वी विल बी एडिंग receipts from tournament, that is to be added, receipts from tournament that is given in the example as rupees 80,000. So we have added this and we will be adding income also. That income is the 10% interest on tournament fund that is given as rupees 20,000। तो ये जो 10% interest है we will be adding this 10% interest on tournament fund that is 20,000 we will be adding। Now after adding all this we will be subtracting the expenses for this fund। So we are adding this is 3 lakh। From this we will be subtracting tournament expenses given as rupees 60,000 in the example। तो 60,000 को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ because we are subtracting this। तो we are getting as 2,40,000 as the balance, जिसको हम आउटर कॉलम में शो करेंगे 2,40,000। और ये जो हमें गिवन है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दिस वी विल बी शोइंग इन द एसेट साइड। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट गिवन एज रुपीज 2 लाख। तो हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि हमें एक स्पेसिफिक फंड गिवन था, टूर्नामेंट फंड जो 2 लाख था। इससे रिलेटेड हमें एक्सपेंस गिवन था, रिसीट्स गिवन थी और हमें इंटरेस्ट इनकम गिवन थी एंड द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस फंड वाज आल्सो गिवन। तो सबसे पहले हमने टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट को तो एसेट साइड पे शो कर दिया एज रुपीज़ 2 लाख एंड वी नो द रूल कि जो भी हमारा फंड अवेलेबल होता है इन द क्वेश्चन उसमें हम रिसीट्स एंड इनकम्स को ऐड करते हैं एंड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो हमने जो ये रिसीट हुई है 80,000 की, वी हैव एडेड दैट, वी हैव एडेड द 10% इंटरेस्ट ऑन दिस फंड दैट इज द इनकम ऑफ रुपीज 20,000। वी गॉट द अमाउंट एज 3 लाख एंड देन वी हैव सब्ट्रैक्टेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वर्थ रुपीज 60,000 एंड वी गॉट द अमाउंट एज 2,40,000। तो ये जो इंटरेस्ट है इस स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट में that we have added to its own fund, that is tournament fund, and it will not go to income and expenditure account। तो यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। दिस 20,000 will only be added to the fund, it will not be shown to the income and expenditure account at all। So this is the presentation that you will be doing for these types of questions that might come in board exam। We will take another example also, example number 2 now।
In this example, tournament fund is given as nil and tournament expenses is given as rupees 10,000. तो basically जब fund nil है तो ये fund based accounting का question है ही नहीं, because there is no specific fund given in the question. We just have tournament expenses, तो हम इसको normal expense की तरह treat करेंगे and we will be showing this in income and expenditure account. So we have to present this information in financial statements of not-for-profit organization. We will be preparing here income and expenditure account. So debit credit I have written here. Debit side is expenditure and credit side is income. तो हम tournament expenses को expenditure side पे show करेंगे simply as tournament expenses, which is given as रुपीज़ 10,000 ओनली. तो हमने सिर्फ इसको एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दिया 10,000. यहाँ पे कोई हमें स्पेसिफिक फंड गिवन नहीं था, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं है और नॉर्मल एक्सपेंस की तरह हमने इसको ट्रीट किया एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग दिस टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 3. इस एग्जाम्पल में हमें रिसीट्स फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स गिवन है रुपीज़ 50,000 और एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो गिवन है रुपीज़ 15,000. रिसीट्स को हम प्रोसीड्स भी कहते हैं. अगर क्वेश्चन में आपको प्रोसीड्स गिवन है तो दैट इज़ योर रिसीट्स ओनली एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक फंड गिवन इन दिस क्वेश्चन. तो ये भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पर जो है हमें ये प्रेजेंटेशन करनी है इस इंफॉर्मेशन की इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ. तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो वी विल बी राइटिंग हियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. I've written here debit credit. Debit side is your expenditure side. Expenditure rupees and credit side is your income side. So we're writing here income rupees. तो यहाँ पे हमें गिवन है रिसीट्स फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स. रिसीट्स जो हैं इनकम्स हैं. दीज आर रेवेन्यू रिसीट्स एंड विल बी क्रेडिटेड इन इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो वी विल बी राइटिंग हियर रिसीट्स फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स which is given as rupees 50,000 we are showing in outer column. and expenses जो हमें given है उसको हम expenditure side पे show करेंगे income and expenditure account की. तो we are writing here expenses on cinema show that is given as 15,000 we are showing here. तो हमने एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और जो हमें रिसीट्स गिवन थी वो हमने इनकम साइड पे शो कर दी और जो हमें एक्सपेंसेस गिवन थे दैट वी हैव शोन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इसकी प्रेजेंटेशन हम इस तरह से करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में. Now let us discuss example number 4. इस example में हमें price fund given है, that is the specific fund is given as rupees 1 lakh और interest given है on price fund investment that is 10,000. This is the income. We will be adding this to the specific fund. Price awarded given है हमें rupees 20,000. Price awarded is your expense out of price fund only. तो इसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे. एंड प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज रुपीज़ 80,000. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स को हम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं. तो बेसिकली वी आर सपोज टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ. तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे. तो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज़, एसेट्स रुपीज़ एंड वी विल बी प्रोसीडिंग फ्रॉम लाइबिलिटीज साइड नाउ. तो सबसे पहले जो हमें स्पेसिफिक फंड गिवन है दैट इज प्राइस फंड. वी विल बी राइटिंग हियर प्राइस फंड विच इज गिवन एज 1 लाख. अब इस स्पेसिफिक फंड में हम इससे रिलेटेड इनकम ऐड करेंगे जो हमें इस एग्जाम्पल में गिवन है इंटरेस्ट. दैट इज इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. इसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द इनकम एंड वी यूजुअली ऐड इनकम्स टू द स्पेसिफिक फंड ओनली. तो वी आर एडिंग हियर 10,000. तो 1 लाख प्लस 10,000 इज नाउ 1,10,000. अब
स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंस गिवन है दैट एक्सपेंस इज नाउ हियर प्राइस अवॉर्डेड, तो इसको हम माइनस करेंगे. वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग हियर प्राइस अवॉर्डेड विच इज एन एक्सपेंस related to this fund only. Price awarded is given as 20,000. So we are getting now 90,000 as the balance amount. और जो हमें यहाँ पे गिवन है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है दैट इज एसेट. वी विल बी शोइंग इन द एसेट साइड प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स as 80,000. So we have seen in this example कि हमें specific fund given था 1 lakh and we were given interest on this specific fund investment that is 10,000. price awarded given था, price fund investment given था. तो हमने specific fund की income that is interest को हमने add कर दिया 10,000 and we subtracted the expense out of this one that is price awarded 20,000. we got the balance as 90,000. this we will be showing in the liability side of the balance sheet. और जो हमारा price fund investment specific fund investment हमें given था that's the asset. ये जो interest है price fund का इसको हमने add किया है in that particular fund only and we are not adding this to price fund investment क्योंकि हम इसको already debit कर चुके हैं either cash और bank account में and we have also entered in receipt and payment account. So that is why we are not adding this in price fund investment. जो specific fund investment है हम उसमें इसीलिए इस interest को add नहीं कर रहे, हम इसके particular fund में ही इसको add करके show कर रहे in the liability side of the balance sheet. Let us discuss example 5 based on fund based accounting. In this example हमें price fund given है rupees 80,000. 10% price fund investment given है on 1st April 2019 as 80,000 rupees. Donation for price fund हमें given है rupees 12,000. Prizes awarded is given as rupees 14,000 और interest received on 10% price fund investment is given as rupees 4,000. तो यहाँ पे हमें दो interest की इंफॉर्मेशन गिवन है. वी विल बी डिस्कसिंग दिस एंड यहाँ पर जो हमें स्पेसिफिक फंड गिवन है दैट इज प्राइस फंड. तो वी नो दैट व्हेन एवर स्पेसिफिक फंड इज गिवन वी विल बी शोइंग दैट इन बैलेंस शीट. तो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट. तो आई हैव ड्रॉन हियर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज. नाउ वी नो दैट कि जो स्पेसिफिक फंड में गिवन होता है उसमें हम रिसीट्स या इनकम्स को ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं. तो इस एग्जाम्पल में हमें डोनेशंस दे रखी हैं फॉर प्राइस फंड. तो डोनेशन इज द इनकम दैट विल बी एडेड और एक्सपेंस हमें प्राइजेस अवॉर्डेड के फॉर्म में दे रखा है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will be writing price fund 80,000. we will be adding the donation. we will be subtracting the prices awarded that is the expense. अब यहाँ पे जो 10% price fund investment given है on 1st April 2019 that is rupees 80,000. तो यानी कि जो 80,000 अमाउंट है हमारा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का इस पर हमें 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो दैट विल बी नाउ इंटरेस्ट on price fund investment. Price fund investment it is given as 10%. तो हम 10% of 80,000 कैलकुलेट करेंगे. We are getting as rupees 8,000. तो 8,000 हमारा इंटरेस्ट होगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का. नाउ इन दिस एग्जाम्पल हमें गिवन है कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे रुपीज़ 4,000. यानी कि ड्यू हमारा कितना था 8,000 एंड वी हैव रिसीव्ड. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट दैट इज रुपीज़ 4,000. ये क्वेश्चन में गिवन है हमें. तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया 4,000. तो द बैलेंस जो है 4,000 दैट इज स्टिल ड्यू दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड. तो यानी कि इंटरेस्ट अक्रूड हमें जो है इस एग्जाम्पल में दैट इज 4,000. टोटल इंटरेस्ट था हमारा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में 10% ऑफ 80,000 दैट केम आउट टू बी 8,000. इसमें से जो हमारा इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया दैट इज गिवन इन दिस एग्जाम्पल एज रुपीज़ 4,000. और जो बैलेंस है दैट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग दैट
interest of 4,000 will be shown in both the sides of the balance sheet. तो जो हमारी एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड है, हम दोनों में ही इस 4,000 इंटरेस्ट को शो करेंगे. एंड इन लाइबिलिटी साइड इट विल बी एडेड, और एसेट साइड पे हम इसको अलग से शो कर देंगे आफ्टर द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड एज गिवन इन दिस एग्जाम्पल. तो ये जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर अक्रूड इंटरेस्ट, यू मस्ट रिमेंबर दैट इट विल बी शोन इन 2 प्लेसेस इन द बैलेंस शीट. एक तो आप इसको शो करेंगे लाइबिलिटी साइड पे, दूसरा आप इसको शो करेंगे एसेट साइड पे. लाइबिलिटी साइड पे यू विल ऐड 2 स्पेसिफिक फंड, एंड एसेट साइड पे आप इसको एज एन आइटम सेपरेटली शो करेंगे. एसेट साइड पे यू विल बी शोइंग अक्रूड इंटरेस्ट. तो नाउ लेट्स बिगिन विद द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन हियर प्राइस फंड. प्राइस फंड जो हमें इस एग्जाम्पल में गिवन है दैट इज 80,000. नाउ दिस प्राइस फंड इज गिवन एज 80,000. अब इस प्राइस फंड में हम इससे रिलेटेड जो भी हमारी इनकम्स हैं या रिसीट्स हैं दैट वी हैव टू ऐड. तो इस एग्जाम्पल में हमें दे रखा है डोनेशंस, तो हम इस डोनेशन को यहाँ पे ऐड करेंगे. डोनेशन फॉर प्राइस फंड दैट इज गिवन एज 12,000. तो वी हैव एडेड दैट. इसके अलावा हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 4,000, तो दैट इज द रिसीट. वी हैव टू ऐड दैट. इनकम है ये हमारी. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड we will be adding 4,000. और जो इंटरेस्ट अक्रूड हमने कैलकुलेट करा 4,000, ये भी हम लाइबिलिटी साइड पे स्पेसिफिक फंड में ऐड करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो दिस विल बी एडेड हियर. इंटरेस्ट अक्रूड दैट इज 4,000, ये भी हम ऐड करेंगे. We are adding interest received, we are adding interest accrued, we are adding donations. So after adding all this, we will be subtracting prices awarded, that is expense. तो हम यहाँ से माइनस करेंगे prices awarded, which is given as 14,000. तो हमने 80,000 प्ले 12,000 प्लस किया एंड वी आर एडिंग दिस 8,000. तो दैट इज 1 lakh माइनस 14,000. तो द अमाउंट कम्स आउट टू बी नाउ 86,000. और एसेट साइड पे हम शो करेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो हमें गिवन है यहाँ पे 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट which is given here 80,000. और ये जो हमने accrued interest कैलकुलेट किया है 4,000, this will be shown in the asset side. Accrued interest on price fund investment, that is 4,000 we are showing here. तो ये 4,000 हम यहाँ पे शो करेंगे. तो हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि हमें जो टोटल इंटरेस्ट था हमारा इन्वेस्टमेंट में दैट केम आउट टू बी 8,000. एंड उस इंटरेस्ट में हमारा 4,000 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं एंड 4,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. तो हमने जो 4,000 हमारा स्टिल आउटस्टैंडिंग है उसको हमने ऐड कर दिया है इन दिस स्पेसिफिक फंड ओवर हियर, एंड वी हैव शोन इन द एसेट साइड ऑल्सो. दिस साइड एसेट साइड we have shown this accrued interest. और ये जो accrued interest है on specific fund investment, this we are showing in both the sides of the balance sheet. हमने इसको liability side पे भी show करा है, हमने इसको asset side पे भी show करा है. liability side पे हमने इसको fund में add कर दिया है और asset side पे we are showing it separately. So this is a new thing you have learned in this example. तो जब भी आपको कोई example दे रखा है fund based accounting में का जिसमें आपको interest
की इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल इंटरेस्ट यू विल बी कैलकुलेटिंग एंड देन यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट रिसीव, तो आपका अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। तो अक्रूड इंटरेस्ट को आप स्पेसिफिक फंड में ऐड करेंगे एंड यू विल बी शोइंग दैट अक्रूड इंटरेस्ट एज अ सेपरेट आइटम इन दी एसेट साइड ऑल्सो। तो हमने देखा कि अक्रूड इंटरेस्ट हम दोनों साइड्स पे शो कर रहे हैं बैलेंस शीट की।